Hello students, very welcome to all of you. So today in sequences and series, we are going to move ahead to the next part of the topic, that is nothing but special series. Please write down this heading. Now in this today we are going to learn about sigma notation, or nothing but it is also sometimes known as summation. जो sigma notation है इसको हम summation भी बोलते हैं. Please write down. Now, as the name suggests, summation मतलब add करना. Terms को जब हम add करेंगे, that is called as summation. So write down under this heading, sigma notation के heading में आप लिखो. For a given sequence T1, T2, T3 and so on up to Tn, the sum of the n terms is given by T1 plus T2 plus T3 and so on up to Tn, and it is denoted by the notation. ध्यान से देखो आप, summation, ये summation का notation है. It is read as sigma or summation r is equal to 1 to n of tr, where this is equal to T1 plus T2 plus T3 and so on up to Tn. तो हम जब सारे terms को add करेंगे T1 plus T2 plus T3 and so on up to Tn, उसको अगर हमें summation के form में लिखना है तो it will be written as summation of r is equal to 1 to n. देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, r takes the values from 1 to n of t of r. मतलब ये expanded form है और ये short form है. You know, we write down abbreviations. कुछ बड़े बड़े टर्म्स का हम एब्रीविएशंस लिखते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं. तो T1 plus T2 plus T3 and so on up to Tn का जो शॉर्ट फॉर्म है, that is written in form of summation, it is written this way. तो चलो, please write down. This notation is very helpful to us. मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक बॉक्स पुट कर देता हूँ. This is important. ठीक है. So summation means it is nothing but sum of all the terms. We are adding all the terms together. Now, obviously, now we are learning about summation, but summation means sum of the terms. Sum of the terms means Sn का formula is already known to us. अभी आप बोलोगे कि सर summation भी sum of the terms है, Sn भी sum of the terms है. तो summation का benefit क्या है? What is the benefit of learning summation over Sn? तो उसका भी बेनिफिट है अपना. देखो, नोट, advantage of summation over Sn is that summation is sum of the any number of consecutive terms, not necessarily starting from the first term, whereas Sn is sum of the first n terms starting from first. तो Sn means what? Recollect, जब हमने sum of the terms किया है, तो sum of the terms means it is sum of the first n terms starting from the first term. तो जो Sn के formulas है वो first term से ही start होते हैं. T1 plus T2 plus T3 and so on up to T10 या T100 तक जाना है तो. But sigma में ऐसा जरूरी नहीं है. तो summation is sum of any number of consecutive terms, not necessarily starting from first. Means if I want to find out T5 plus T6 plus T7 and so on up to T10 find करना है, तो 5 to 10 terms अगर मेरे को add करना है तो that is possible by summation. But अगर T5 to T10 find करना है मेरे को, T5 to T10 find करना है, that is not possible for Sn. तो listen carefully. Sn means sum of the first n terms starting from the first term. हमेशा वो first term से ही चालू होना चाहिए. क्या? Sn. But sigma notation में जरूरी नहीं है कि it should be starting from the first term. उसका जो summation है वो 5th term से start हो सकता है, उसका जो summation है वो 10th term से start हो सकता है, and it can go till n terms. So that is the benefit or advantage of summation over Sn. अब ये पॉइंट जनरली कोई समझाता नहीं है, एडवांटेज ऑफ समेशन ओवर Sn, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेंबर. दोनों सम ही है,
sigma is also summation, Sn is also summation, but that is the difference between them. So please note down this. देखो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं. These are all small things, but they matter a lot, you know. चलो next we are going to see properties of summation. ऐसा heading आप दे दो. Properties of summation or properties of sigma. One and the same thing. Sigma बोलो या summation बोलो. Now this concept is also going to play. ये जो sigma notation है is also going to play a very important role in physics also. ये सारे notations आपको आगे जाके physics में भी आने वाले या अगर आपने किया है तो already आ चुके भी होंगे. तो first property of summation, please write down. What is that first property of summation? Says summation of r is equal to 1 to n of AR plus minus BR is equal to summation of r is equal to 1 to n of AR plus or minus summation of r is equal to 1 to n of BR. So first property क्या बोलता है students? First property says that you can split the summation to the terms if it is combination of plus and minus. अगर बीच में plus minus का sign है तो summation जितने भी terms है वो summation split होता है. That is what property number 1 says. ठीक है, चलो please write down the first property. Now see the second property of summation says what? Summation r is equal to 1 to n of k into AR, where what is k? K is a non-zero constant. So that will be written as k into summation of r is equal to 1 to n of AR. अब second property क्या बोलता है? If there is any constant term present inside the summation, अगर कोई भी constant term summation के अंदर है, so that constant term can be written outside the summation. That is what property number 2 says. Property number 3 देखो, summation of r is equal to 1 to n of k is nothing but equal to k into n होता है. Third property, where again k stands for non-zero constant. And fourth property is summation r is equal to 1 to n of 1 is nothing but equal to n. मतलब 1 को आप n times add करो, you will get the answer n. Yes, obviously 1 को अगर आप 10 times add करोगे तो आंसर 10 आएगा. 1 को आप 100 times add करोगे तो आंसर 100 आएगा. Obviously 1 को आप n times add करोगे तो आंसर 10 आएगा. So these are all very important properties of summation. Please make a note of them. Now let us write down one or two note. अब जैसे आपको पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है? समेशन स्प्लिट होता है इफ देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस और माइनस. अगर किसी भी 2 या 3 टर्म्स के बीच में प्लस माइनस का साइन है तो समेशन स्प्लिट होता है. बट अगर कोई टर्म अपॉन में है या प्रोडक्ट में है, इफ इट इज इन फॉर्म ऑफ कोशेंट और इफ इट इज इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, तो समेशन स्प्लिट नहीं होता है. See the first note, summation r is equal to 1 to n of AR upon BR is not equal to summation r is equal to 1 to n of AR upon summation r is equal to 1 to n of BR. ये possible नहीं है. This is not possible. Second note says summation r is equal to 1 to n of AR into BR is not equal to summation of AR into summation of BR, where R takes the values from 1 to n. तो ये नोट भी आप लिख लीजिए, very important. So what we have to remember कि अगर डिवीजन में है, डिवीजन के फॉर्म में है या प्रोडक्ट के फॉर्म में है दो टर्म्स, तो समेशन स्प्लिट नहीं होगा. समेशन स्प्लिट तभी होगा इफ देयर इज plus or minus sign between the terms. Note down please. Now let us
see some results that we are going to apply while problem solving. तो first result देखिए आप, sum of the first n natural numbers is given by 1 plus 2 plus 3 and so on up to n is equal to n into n plus 1 by 2 होता है. तो किसी भी sum of first n natural numbers का अगर हम सम कर रहे हैं तो उसका सम करने का फॉर्मूला है n into n plus 1 by 2. अच्छा, इट इज रिटन इन फॉर्म ऑफ समेशन. हमें तो समेशन के फॉर्म में भी उसको याद रखना है. तो समेशन r is equal to 1 to n of r is nothing but equal to n into n plus 1 by 2. अब देखो ये जो एक्सपांडेड फॉर्म है 1 plus 2 plus 3 and so on up to n, इसको अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखे तो इट विल बी रिटन एज समेशन r is equal to 1 to n of r and it is equal to n into n plus 1 by 2. तो ये एक हमारा फॉर्मूला बन गया या रिजल्ट बन गया जो हमें याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. सेकेंड वाला रिजल्ट है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय 1 square plus 2 square plus 3 square and so on up to n square is nothing but equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. ये हमारा फॉर्मूला है. So summation of r square where r takes the values from 1 to n is equal to what? n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. तो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला बन गया जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए याद रखना है. प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड. प्रूफ की जरूरत नहीं है इसमें. डायरेक्ट ये जो बॉक्स में डाले हैं वो फॉर्मूलेज याद रख लो और उनके ये एक्सपांडेड फॉर्म्स भी याद रखना है आपको. I have given you everything. This is the verbal form, this is the expanded form and this is the short form. सभी फॉर्मेट मैंने आपको लिख के दिया है. ठीक है, चलो प्लीज नोट डाउन. फिर उसके बाद थर्ड वाला रिजल्ट है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n natural numbers is given by 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on up to n cube is given by the formula n square into n plus 1 the whole square by 4. That is summation r is equal to 1 to n of r cube is given by n square into n plus 1 the whole square by 4, which also can be written as n into n plus 1 whole upon 2 the whole square. So ये third result है. So these are the three results that we have to remember. Please note down. ठीक है, तो what we have seen till now, we have started with special series sigma notation. sigma notation मतलब summation. तो summation को किस फॉर्म में लिखना है वो हमने देखा. ठीक है, then we have seen the advantage of summation over SN. उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे हम, एडवांटेज वाला एग्जांपल्स भी देखेंगे. Then we have to remember properties of summation. Then we have to remember the results of the summation. तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है. चलो तो note down till here. Then we will move on to the problems that are based in the exercise which are dependent on properties of summation and the results of summation. चलो लिख लीजिए आप. अब जैसे ये मैंने ये जो नोटेशन दिया है यहाँ पे देख लो. बिफोर वी मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स, नाउ दिस नोटेशन वी हैव रिटन r इज इक्वल टू 1 to n. तो जनरली आप टेक्स्ट बुक्स में देखोगे तो सब जगह पे आपको r इज इक्वल टू 1 to n ही दिखेगा. बट समटाइम्स दीज नोटेशंस कैन बी चेंज्ड. वैसा भी लिख सकता है समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एंड इन दैट केस ये tr के जगह पे ये हो जाएगा ti. It is one and the same thing. r is equal to 1 to n लिखो या i is equal to 1 to n लिखो. अगर i लिखा तो इधर t of i लिखना पड़ेगा. अगर r लिखा तो इट इज t of r लिखना पड़ेगा. जैसे भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लिख सकते हो. बट जनरली इन टेक्स्ट बुक्स यू विल ऑब्जर्व इट इज ऑलवेज रिटर्न r is equal to 1 to n of tr.
जनरली वो आर नोटेशन ही यूज करता है, बट फिर भी आपके रेफरेंस के लिए मैंने बता दिया सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन पेंडिंग। ठीक है, चलो प्लीज नोट डाउन दिस क्विकली, देन विल मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स। So students, let us move on to exercise number 2.6, question number 1. ठीक है, क्या दिया है? Find the sum of, चलो write down solution for problem number 1. So let us consider this given summation. लिखिए consider summation, थोड़ा left hand side of the page से आप लिखिए r is equal to 1 to n of r plus 1 into 2r minus 1 equal to. Now what we'll do, summation as it is रखेंगे हम यहाँ पे, r is equal to 1 to n. Now we will multiply these two brackets. Now see, this is product of two functions, है ना, दो टर्म्स का ये प्रोडक्ट है, तो इसको हम समेशन स्प्लिट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट्स, तो r इंटू 2r, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 इंटू 2r इज 2r माइनस 1। अभी इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ 2r स्क्वायर प्लस r माइनस 1 क्लोज द ब्रैकेट। चलो write down till here. Now one by one we will be using the properties of summation and then we'll use the results. Now see, it is combination of plus and minus. So see, what does property number 1 says, कि if there is plus minus sign summation split होता है। So let us split up the summation. So this is further equal to, write down summation r is equal to 1 to n of 2r स्क्वायर, समेशन फर्स्ट टर्म को गया, प्लस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ r, समेशन सेकेंड टर्म को गया, माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ 1, समेशन थर्ड टर्म को गया। चलो राइट डाउन, आई एम राइटिंग डाउन स्टेप वाइज इनिशियली, फर्स्ट एग्जांपल है तो सारे स्टेप्स में लिख रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए। Now see what will happen according to the property of summation, जिधर भी कांस्टेंट्स है वो समेशन के बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट है, तो राइट डाउन 2 समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ r स्क्वायर प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ r माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ 1। हाँ, एंड प्लीज रिमेम्बर वन मोर थिंग, जब भी आप समेशन लिखते हो तो r इज इक्वल टू 1 टू n इज ऑलवेज कंपल्सरी। चलो राइट डाउन टिल हियर, देन विल मूव अहेड। नाउ वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ, मतलब प्रॉपर्टीज तो हमने यूज कर लिए, नाउ वी हैव टू यूज रिजल्ट्स ऑफ समेशन। तो समेशन के रिजल्ट्स देखो मैंने वहां पे लिखे हुए हैं, दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 रिमेनिंग सेम समेशन ऑफ r स्क्वायर का फॉर्मूला देखो आप, it is n into n plus 1 into 2n plus 1 whole upon 6 plus summation of r is n into n plus 1 upon 2 minus summation of 1 is nothing but n। वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, if it is summation r is equal to 1 to n of 1 रहेगा तो वो n होता है, एंड समेशन r is equal to 1 to n of k into 1 रहेगा तो वो k into n हो जाता है। ये भी लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, लिख के दिया हुआ ऑलरेडी, बट स्टिल अगेन आई एम राइटिंग इट डाउन। Now we have to simplify this as far as possible, इसको हम simplify करेंगे। तो what will happen, अच्छा now if I carry out the cancellation, अगर मैं कैंसिल करूंगा तो no doubt 2 3s simplify होगा, but I will have to take LCM also। अब LCM लेने के लिए वापस 6 करना पड़ेगा,
अगर यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो एलसीएम 6 होने वाला है। नाउ 6 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो आई विल मेक सबका डिनोमिनेटर में 6 कर दूंगा, ठीक है। तो राइट डाउन, व्हाट विल दिस बिकम, 2 टाइम्स ऑफ n into n plus 1 into 2n plus 1 प्लस सबका डिनोमिनेटर फिक्स करना है। देखो सबसे पहले मैं ये अपॉन 6 लिख देता हूँ, हैव टू मेक अपॉन 6 फॉर ऑल ऑफ दीज, so this will multiply divide by 3, so what will this become, 3n into n plus 1 minus this is going to become 6n, this is completely divided by 6। ये एलसीएम लिया है हमने सबसे पहले। now what we are going to do, इन सारे टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर लो, so this is further equal to, अच्छा थोड़ा अभी मैं जरा यहाँ पे लिखता हूँ because otherwise that inclination is going upwards, so therefore summation r is equal to 1 to n of r plus 1 into 2r minus 1 is equal to, chalo now start multiplying them quickly। so what will happen, this 2 will remain same, open up a bracket। अच्छा अभी आप डायरेक्टली अगर आपको नहीं करना है तो ऐसा करते हैं, ये फर्स्ट वाला जो n है इसको एज इट इज रख देते हैं। पहले आप ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लो, n plus 1 into 2n plus 1, so what will that give us, that will give us nothing but 2n square, okay, plus n plus 2n plus 1, close the bracket, plus अब ये जो 3n है, 3n इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 3n स्क्वायर प्लस 3n minus 6n will remain same and this is completely divided by 6, अपॉन में 6 है ऑलरेडी, ठीक है। चलो now what will happen students, कि ये जो 2n है, this 2n will be multiplied inside। अच्छा उसके पहले और एक सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं कि ये जो n plus 2n है ये 3n हो जाएगा बिफोर वी ओपन अप द ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट हम नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर देंगे, चाहिए तो सॉरी डन, दिस इज फर्दर इक्वल टू 2n remaining same, this is 2n square plus 3n plus 1 plus 3n square remaining same, 3n minus 6n minus 3n हो जाएगा and this is completely divided by 6। अभी न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो what will this become, this will, ये 2n सभी को जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, you know how to open up the bracket, you know, so this will become 4n cube plus 6n square plus 2n plus 3n square minus 3n completely divided by 6। वापस सिंप्लीफाई करो as far as possible, तो 4n cube remaining same, 6n square plus 3n square is nothing but 9n square, 2n minus 3n is minus n divided by 6, तो यही हमारा फाइनल आंसर है and this is answer for summation r is equal to 1 to n, this is r plus 1 into 2r minus 1 का यही हमारा फाइनल आंसर है। प्रॉब्लम इज ओवर, प्लीज नोट डाउन। तो सिंप्लीफाई एज फार एज पॉसिबल, जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो जो एलसीएम लेना है, कॉमन लेना है, दैट यू डिसाइड हाउ इट इज टू बी डन एंड सिंप्लीफाई एज फार एज पॉसिबल। चलो प्लीज नोट डाउन टिल हियर। So I hope you must have written this solution। अच्छा इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि when you are solving the problems, आंसर जो पीछे दिया होता है ना, that can be in some different form also। Like for example, if I take n common, now I don't know how the answer is given, आंसर ऐसा दिया है कि जो मैं लिखने वाला हूँ वैसा दिया है, वो मुझे नहीं मालूम, वो आप देख लेना। अगर मैं n को कॉमन निकालता हूँ from here, तो what will I get, you know, 4n square प्लस 9n माइनस 1 अपॉन 6 आएगा। अब ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है, मीनिंग इज सेम।
तो वो आप देख लेना कैसे आपको करना है। तो वंस यू सब्स्टिट्यूट, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इफ इट इज प्रोडक्ट तो सबसे पहले आप ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ समेशन, प्लस माइनस के लिए प्रॉपर्टी यूज करोगे, देन यू विल यूज रिजल्ट्स ऑफ समेशन। एक बार जब रिजल्ट यूज हो जाता है तो उसके बाद यू हैव टू कैरी आउट द कैंसलेशन एंड यू हैव टू टेक द एलसीएम। अब आप आपके हिसाब से, आपको जैसा प्रैक्टिस है एलसीएम लेने का, उसके हिसाब से प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो एंड गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो प्लीज नोट डाउन दिस क्विकली, लेट अस देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ as we have done the first question, similarly एक second question है जो आप होमवर्क सेक्शन के लिए करोगे एक्सरसाइज में। इट इज फाइंड सम ऑफ, क्वेश्चन लिख लीजिए आप, r is equal to 1 to n of 3r square minus 2r plus 1। इसको आपको सॉल्व करना है, इसका समेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो एज यू हैव रिटर्न, जैसे हमने ये प्रॉब्लम किया सेम वे, ये देखो ये स्टेप है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन, यूज द रिजल्ट्स, फिर एलसीएम लेना, कैंसिलेशन, सिंप्लीफिकेशन, जहां तक पॉसिबल है यू हैव टू इवैल्यूएट दिस। ये आपका होमवर्क एग्जांपल है। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड आप करोगे होमवर्क सेक्शन के लिए, वी विल स्टार्ट। अच्छा, नाउ इसमें भी जो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दे आर ऑफ सिमिलर टाइप, तो मैं फोर्थ क्वेश्चन करूंगा, थर्ड में आपको दूंगा होमवर्क के लिए। सिमिलर टाइप वाले आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। इसका सॉल्यूशन आप लिखिए। तो योर फर्स्ट स्टेप विल बी कंसीडर समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, और ये एक्सप्रेशन देखोगे आप which is given in form of summation, this is equal to, now please try to understand, फिर आप लिखना summation r is equal to 1 to n। now instead of continuing that equal to, I'm just writing down on the next line, इसको ये equal है। now see the result, summation of r cube। देखो आपके लिए मैं पूरा एक वो फॉर्मेट ही लिख देता हूँ, प्लीज पे अटेंशन। 1 cube plus 2 cube and so on up to n cube, this is equal to what, n square into n plus 1 the whole square by 4। ये फॉर्मूला है। अब ये किसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on up to n cube का। बट इन द प्रॉब्लम अब ये समेशन के अंदर समेशन है, तो नाउ प्लीज डू ऑब्जर्व, पे अटेंशन, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on up to r cube है, यहाँ पे n cube है, प्रॉब्लम में r cube है, तो यहाँ पे n में लिखा है, तो प्रॉब्लम में we have to write down in form of r। तो 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on up to r cube will be written as r square into r plus 1 the whole square by 4। देखो समझने की कोशिश करो, रट्टा नहीं मारना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू मूव अहेड। अगर n के फॉर्म में लिखा है तो दिस विल बी रिटन इन फॉर्म ऑफ n एक्सपेंडेड। अगर r के फॉर्म में लिखा है तो वही सेम चीज हमें r के फॉर्म में लिखना है, डिनोमिनेटर r इंटू r प्लस 1 रिमेनिंग द सेम। चलो राइट डाउन फर्स्ट स्टेप, और आपके रेफरेंस के लिए ये लिख लो, सिंस ये रीजन है इसका, इधर से ये स्टेप कैसे आया, बिकॉज दिस फॉलोज। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई द टर्म्स ओवर हियर। तो अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, एक r कैंसिल हो जाएगा, एक r प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो देयर फॉर, अच्छा या दिस इज फर्दर इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, व्हाट इज लेफ्ट आउट, r into r plus 1 upon 4 remains। Now you observe 1 by 4 constant है, so this is further equal to 1 by 4 summation के बाहर, summation r is equal to 1 to n, this r gets multiplied inside, so what do we get, r square plus r। now according to the properties of summation, देखो बीच में प्लस साइन आ गया, तो अगर प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है तो समेशन स्प्लिट होता है,
So this will be further equal to 1/4, open up a bracket, summation r is equal to 1 to n of r square, summation फर्स्ट टर्म को गया प्लस summation r is equal to 1 to n of r summation second term को गया, split हो गया summation. See the properties of summation in your notebook. Now what will happen? Now we will apply the result. Summation of r square का formula and summation of r का formula हमें use करना है यहाँ. तो चलो write down. This is further equal to, next step लिखो, 1/4 bracket. Now see what is summation of r square का formula, students? It is nothing but n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 plus summation of r का formula है n into n plus 1 upon 2, close the bracket. चलो write down till here. इसको मैं रब कर देता हूँ, ये हो चुका है ऑलरेडी. Now what will happen? अब कैसे सॉल्व करते हैं वो हमारे ऊपर है. You can take LCM for both the terms and then you can solve. ये तीनों ब्रैकेट आप ये तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, और एल्स थोड़ा जरा इजी वे से करते हैं. नाउ यू ऑब्जर्व बोथ द टर्म्स वेरी केयरफुली. दोनों टर्म्स में से हम कॉमन निकाल सकते हैं. चलो रेड, नेक्स्ट स्टेप. दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/4. नाउ सी फ्रॉम बोथ द टर्म्स व्हाट कैन बी टेकन कॉमन, n into n plus 1 upon 2 will be taken common from both the terms, दोनों टर्म्स में से. तो जब हम n into n plus 1/2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में? 2n plus 1 upon 3. Now see, to explain in detail, this 6 is 2 into 3 ना. तो n into n plus 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2n plus 1 upon 3 बच गया, प्लस यहाँ से n into n plus 1 upon 2 कॉमन लिया तो यहाँ से 1 बच गया. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. एकदम सिंपल करके आपको समझाया मैंने. चलो राइट डाउन. तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, नाउ राइट डाउन. देयरफॉर, अभी मैं ऐसा लिखता हूँ इसको, देयरफॉर समेशन r is equal to 1 to n of 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on up to r cube upon r into r plus 1. इसको हमें सिंप्लीफाई करना था, बराबर है, ठीक है ना. तो नाउ दिस इज दे आर ऑल इक्वल टू दिस स्टेप, so this is equal to, अब ये देखो क्या हो जाएगा, this will become n into n plus 1 by 4 into 2, so that will become 8. Now let us take LCM inside this bracket. अभी यहाँ पे LCM लेना इजी है, तो जब हम LCM लेंगे तब क्या मिलेगा, लिखो 2n plus 1 plus 3 whole upon 3 मिलेगा. So this gets simplified, so this is further equal to n into n plus 1 upon 8 into, इसको जब हम LCM लेके सॉल्व करेंगे तो दिस बिकम्स 2n plus 4 upon 3. अब इसमें भी डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे उसके हिसाब से. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, अगर आप n into n, नाउ सी, चलो लेट अस राइट डाउन. दिस कैन बी आल्सो रिटन एज n into n plus 1 into 2n plus 4 by 3 8 24. ये आंसर है हमारा. अब हो सकता है इसमें हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम दिस. तो अगर हमने 2 कॉमन लिया तो अच्छा ऐसा हो सकता है कि टेक्स्ट बुक में उसने ये आंसर दिया होगा, ठीक है. नाउ लेट अस टेक 2 कॉमन, तो n into n plus 1 into 2, ये दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, n plus 2 upon 24, so that is nothing but n into n plus 1 into n plus 2 upon 12. हो सकता है टेक्स्ट बुक में ये आंसर भी दिया हो सकता है, मे बी. तो बोथ द आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, नो प्रॉब्लम. या ऐसा भी हो सकता है कि उसने ये तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके एक टर्म लिखा हो,
You can multiply all these three terms and write down the final answer. तो final answer कैसे भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. R is equal to 1 to n. इसका आंसर है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब and so on up to r cube upon r into r plus 1 का ये simplification है and final answer है. चलो note down everyone. With this example is over. जैसे हमने fourth example solve किया है, similarly third you can do it as homework section. So third I'm not doing in the class, that you do it as homework. Note down, then we'll move on to the next question. Now students, let us move on to the next question, that is question number 5. Now we want to find out sum of these terms, 5 into 7, 9 into 11, 13 into 15 and so on up to n terms. Now first of all, यहाँ पे n terms unknown है, तो सबसे पहले हमें n terms find करने पड़ेंगे, means tn. Solution for the problem. Now this kind of problem can be asked for 3 to 4 marks. Write it down. For the sequence, इसके जो पहले terms है 5, 9, 13 and so on up to n terms. This sequence is forming an arithmetic progression. For the sequence, या ऐसा लिखो, the sequence 5, 9, 13 and so on up to n terms is in AP. So here the first term is 5 and the common difference is 4. Therefore Tn का क्या फॉर्मूला है, a plus n minus 1 into d. So a का वैल्यू is 5 plus n minus 1 into the difference is 4. So जब ये tn simplify हो जाएगा, so this tn is nothing but equal to, this will become nothing but 4n minus 4 plus 5 is positive 1. So 4n plus 1 ये इसका tn है. Now for the sequence, दूसरा वाला, for the sequence, दूसरा sequence कौन सा है, 7, 11, 15. तो 7, 11, 15 and so on up to n terms. This is also in arithmetic progression. तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, बट यहाँ पे a का वैल्यू is 7 and the difference is 4. So therefore Tn is equal to a plus n minus 1 into d. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4n plus 3. हाँ, तो इसका nth टर्म ये है और ये वाले सीक्वेंस का nth टर्म ये है. Now if you observe the sequence, it is product of these two sequences. Pay attention over here. देखो अब मैं लिखता हूँ, therefore now since we want to find out sum, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, Sn is equal to, अभी देखो 5 into 7 फर्स्ट टर्म है, प्लस सेकेंड टर्म क्या है 9 into 11, नेक्स्ट टर्म क्या है 13 into 15. इट इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सीक्वेंस. तो इसका जो nth टर्म होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ देयर nth टर्म. तो इस सीक्वेंस का nth टर्म है 4n plus 1 और जो सेकेंड वाला सीक्वेंस है मल्टीप्लिकेशन में उसका nth टर्म है 4n plus 3. ठीक है, तो दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ देयर nth टर्म. चलो यहां तक लिख लो आप. ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ के लिखो, रट्टा नहीं मारना है. दिस इंटू दिस, 9 into 11, 13 into 15 and so on, this into this, ऐसा हमने लिखा. Now we have to convert it in form of summation. तो इसको समेशन के फॉर्म में प्लीज पे अटेंशन. तो Sn will be written as summation. अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ समेशन में लिखने के लिए. जो भी nth टर्म है ना
whatever is the nth term you write down in summation. इसको हमें summation के अंदर लिखना है, but it will be written in form of r. तो ये हो जाएगा 4r plus 1 and this will become 4r plus 3. This is एक तरीका है याद रखने का. जो nth term है उसी को आप यहाँ पे लिखो, but in form of r, where r takes the values from 1 to n. तो ये तो सेम क्वेश्चन हो गया जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया ना एक्सरसाइज का, सेम क्वेश्चन. You have to multiply the two brackets and solve it ahead. चलो यहाँ तक लिख लो आप. Therefore, Sn is further equal to summation r is equal to 1 to n. Multiply these two brackets. 4r into 4r, तो ये हो जाएगा 16r square plus 12r plus 1 into 4r is 4r plus 3. So this is further equal to summation r is equal to 1 to n. This will become 16r square plus 16r plus 3. This is nothing but Sn. चलो राइट डाउन टिल हियर. अच्छा, सभी क्वेश्चंस को, इवन जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा, उसको आप ऐसा लिख सकते हो, लेट Sn इज इक्वल टू और कंसिडर Sn इज इक्वल टू समेशन मींस इट इज सम ओनली. तो बिंदास होके लिख सकते हो आप ऐसा, इट इज परफेक्टली ऑल राइट. बस नाउ लेट अस यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन. ठीक है, तो पहले प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, फिर रिजल्ट्स यूज करेंगे समेशन के. तो सिंस इट इज प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है तो समेशन स्प्लिट हो जाएगा सभी टर्म्स को. तो लिखो क्या मिलेगा, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ r is equal to 1 to n of 16r square plus summation r is equal to 1 to n of 16r plus summation r is equal to 1 to n of 3. समेशन स्प्लिट हो गया सभी टर्म्स को. अभी कॉन्स्टेंट्स को कॉमन निकाल लो. देयरफॉर Sn is equal to 16 समेशन के बाहर summation of r square, r takes the values from 1 to n. यहाँ पे भी 16 बाहर और यहाँ पे 3 आप बाहर नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा. लेट अस कीप इट इनसाइड. समेशन r is equal to 1 to n of constant, you keep it as it is inside. अब देखो इसमें दो तरीके हैं. अगर कांस्टेंट को बाहर नहीं निकाला तो ये वाला रिजल्ट आएगा, कांस्टेंट को बाहर निकाला तो ये वाला रिजल्ट आएगा. चलो नाउ समेशन ऑफ r स्क्वायर का फॉर्मूला. So written therefore Sn is equal to 16 will remain same. What is summation of r square का formula? N into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 plus 16 remaining same. Summation of r का formula है n into n plus 1 by 2 plus this will become nothing but 3n. Results आप देखो यहाँ पे. Summation of k into 1. Now obviously understood है 3 है मतलब this is 3 into 1 है. तो k into 1 k into n होता है, तो 3 into 1 3 into n हो जाएगा. That is by the results. बस now let us take LCM. तो LCM लेने के लिए डिनोमिनेटर सबका सेम करना है. तो सबका डिनोमिनेटर स्टूडेंट हम करने वाले हैं 6 upon 6 will make it. तो 16 remaining same. चलो this n into n plus 1 into 2n plus 1 remaining same plus this will be multiplied by. अच्छा आप कैंसिलेशन करोगे तो भी अपॉन में तो 6 करना ही पड़ेगा आपको. ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो ना आप. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3. तो 16 3 जा हो जाएगा 48 into n into n plus 1 plus this will be also multiplied by 6. तो 6 3 जा ये हो जाएगा 18 into n completely divided by 6. तो upon 6 हमारा LCM है. चलो write down till here first, then we'll move ahead. ठीक है, so I hope you must have written till here. आगे बढ़ते हैं. तो therefore Sn is equal to, अब देखो upon 6 तो as it is रहेगा. Now let us simplify the numerator.
तो दिस 16 रिमेनिंग सेम इनटू ये तीनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई करो, तो हाउ मच विल दिस बिकम, मैं आपको सेपरेटली करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे n है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n इज प्लस 3n प्लस 1, ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। विल ट्राई टू सेव वन स्टेप। अब ये n तीनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, तो ये तीनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन ये है, प्लस नाउ 48n यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 48n स्क्वायर प्लस 48n प्लस 18n विल रिमेन सेम, अपॉन में तो 6 है ही पहले से। चलो राइट डाउन, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। नाउ ओपन अप द ब्रैकेट विद द हेल्प ऑफ 16, so therefore Sn is further equal to, तो ये क्या हो जाएगा अभी, so this is going to become 16 2s are 32n cube plus 16 3s are 48n square plus 16n plus 48n square plus 48n plus 48n, सभी टर्म्स को हम एक साथ ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 18n रिमेनिंग सेम, दिस इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 6। अभी जो n स्क्वायर वाले टर्म्स है आप n स्क्वायर के साथ ऐड करो, n वाले टर्म्स है वो n वाले टर्म्स के साथ ऐड करो एंड सिंप्लीफाई एज फार एज पॉसिबल। चलो स्टार्ट डूइंग। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, देयरफॉर Sn इज फर्दर इक्वल टू, देखो 32n क्यूब तो सेम रहेगा, ठीक है, 32n क्यूब विल रिमेन सेम, 48n स्क्वायर प्लस 48 का डबल, so it is 96n square plus 16 plus 18 is 34, 16 plus 18 is 34, 34 plus 48 is 82, ठीक है ना, तो हो जाएगा 82n, दिस इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 6। अभी इसमें से आप कॉमन लेके इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलो स्टार्ट डूइंग। अभी 32 तो एग्जैक्टली 6 से डिविजिबल है नहीं, हाँ, तो यू कैन नॉट डिवाइड इट बाय 6, तो अपॉन 6 नहीं जाएगा, तो यू कैन टेक 2 कॉमन, है ना, अपॉन में 6 रहेगा, तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, तो क्या मिलेगा 16n क्यूब प्लस 48n प्लस ये हो जाएगा 41, सॉरी ये n स्क्वायर है, तो ये 41n डिवाइडेड बाय 6, तो कॉमन निकाल दिया, 16n क्यूब प्लस 48n स्क्वायर प्लस 41n डिवाइडेड बाय 6, तो 2 3s are, so therefore Sn is further equal to, I hope दिखेगा आपको, हाँ दिखेगा, तो 3 times it will go, तो आंसर इज 16n क्यूब प्लस 48n स्क्वायर प्लस 41n डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, अभी ऐसा भी हो सकता है कि उसने n कॉमन करके लिखा होगा आंसर, तो n अगर कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16n स्क्वायर प्लस 48n प्लस 41 होल अपॉन 3। अब आप देख लो टेक्स्ट बुक में क्या आंसर दिया है, नॉट नेसेसरी कि टेक्स्ट बुक में जो दिया है वहीं तक हमें जाना है, यू कैन स्टॉप योर आंसर हियर ऑल्सो, बट यहाँ पे नहीं छोड़ना है आपको, सिंप्लीफाई एज फार एज पॉसिबल। कभी कभी टेक्स्ट बुक ने इसी स्टेप में छोड़ दिया आंसर, तो सिंप्लीफाई एज फार एज पॉसिबल, वो प्रोसीजर आपको कंप्लीट करना है। प्लीज नोट डाउन, प्रॉब्लम इज ओवर। तो स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस काइंड, जिसमें अप टू n टर्म्स है, जिसमें n टर्म मिसिंग है, तो सबसे पहले nth टर्म फाइंड करना है, फिर उसको आपको समेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक बार जब वो समेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, देन यू कैन डू द रेस्ट प्रोसीजर एज द प्रीवियस एग्जांपल्स। तो ऐसा ये प्रोसीजर है। अच्छा, वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, समटाइम्स कुछ जो रेफरेंस बुक्स है ना, दिस 5 into 7 दे कैन राइट डाउन, इंटू को वो डॉट भी डालते हैं,
instead of using multiplication का symbol they use this dot also. तो ये अगर बाय चांस एग्जाम में है या किसी रेफरेंस बुक में आपको दिखा तो डोंट रीड दिस एज 5.7. आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को देख के कि ये सीक्वेंसेस सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, मीन स्पेशल सीरीज वाला. दिस इज रेड एज 5 into 7, 9 into 11, 13 into 15. अगर डॉट दिया तो जनरली दे गिव मल्टीप्लिकेशन, बट इफ बाय चांस अगर डॉट दिया है तो मीन्स इट इज मल्टीप्लिकेशन फॉर सीरीज. ठीक है, चलो नोट डाउन, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे भी देखो अप टू n टर्म्स दिया है, तो सबसे पहले n टर्म फाइंड करना पड़ेगा. सो राइट डाउन द सीक्वेंस, the sequence 2, 4, 6, 8 and so on up to n terms is in arithmetic progression. So here the value of a is 2 and difference is also 2. So therefore Tn का जो फॉर्मूला है वो है a plus n minus 1 into d. तो ये हो जाएगा 2 plus n minus 1 into 2. So therefore Tn is nothing but 2n. nth term 2n है, तो लिखो therefore Sn is equal to 2 square plus 4 square plus 6 square plus 8 square. सभी टर्म्स का स्क्वायर है, तो जो nth टर्म है वो nth टर्म का भी स्क्वायर होगा ऑब्वियसली. So therefore Sn is equal to, now what we are supposed to do, we are supposed to write down this in form of summation. तो अभी क्या करना है, समेशन लिखना है. जो n के फॉर्म में है वो समेशन के अंदर r के फॉर्म में हो जाएगा, रिप्लेस n by r, ऐसा आपको याद रखना है. एंड r टेक्स द वैल्यूज फ्रॉम 1 to n. मतलब कैसा वर्कआउट होता है, आप r का वैल्यू 1 डालो तो 2 into 1 2 का स्क्वायर. आप r का वैल्यू 2 डालो 2 2 जा 4 4 का स्क्वायर. आप r का वैल्यू 3 डालो 2 into 3 6 6 का स्क्वायर. एंड कंटिन्यूइंग इन सच अ वे, जब आप r का वैल्यू n डालोगे तो दिस विल बिकम 2n द होल स्क्वायर. ऐसा वो एक्सपांड होता है. नाउ दिस इज नथिंग बट फर्दर इक्वल टू समेशन r is equal to 1 to n of 4r square हो जाएगा. 4 कांस्टेंट है तो Sn is equal to 4 जाएगा समेशन के बाहर. समेशन r is equal to 1 to n of r square. अभी समेशन ऑफ r square का फॉर्मूला, तो 4 into व्हाट इज समेशन ऑफ r square का फॉर्मूला, इट इज n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. तो इसको सिंप्लीफाई करो, therefore Sn is further equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 and 4 by 6 को आप रिड्यूस करोगे तो इट विल बी 2 by 3. This itself is the final answer and you can stop it over here. At the maximum हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करके आप आपका आंसर लिख सकते हो, और else you can leave it here also. चलो नोट डाउन, प्रॉब्लम इज ओवर. Now after question number 6 let us move on to question number 8. सिमिलर टाइप वाले प्रॉब्लम्स पहले एक साथ ले लेते हैं हम. नाउ कुछ जो टेक्स्ट बुक है, जो ओल्डर वर्जन ऑफ टेक्स्ट बुक है, उसमें ये nth टर्म गलत दिया. दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इन फॉर्म ऑफ समेशन. तो लिखो therefore Sn is equal to, इसको समेशन में कन्वर्ट करना है तो समेशन का सिंबल डालो एंड एवरीथिंग यू राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ r. तो ये हो जाएगा 2r minus 1, दिस विल बी 2r plus 1 and this will be 2r plus 3. r takes the values from 1 to n. रिजल्ट्स मैंने रब कर दिए क्योंकि ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है. नाउ a plus b into a minus b वाला फॉर्म है ये दोनों ब्रैकेट. तो therefore Sn is equal to summation r is equal to 1 to n. What will this become?
4r² माइनस 1 हो जाएगा एंड दिस विल बी 2r प्लस 3, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n। हाँ, तो ब्रैकेट कैसे ओपन करना है आपको पता है, तो पहले 4r² दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, so that will give us 4 2s are 8, r² into r is r³ plus 12r², this into this, फिर -1 दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, -2r माइनस 3, ब्रैकेट्स ओपन हो गए। नाउ लेट अस यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन, समेशन स्प्लिट होगा, दिस इज फर्दर इक्वल टू समेशन r is equal to 1 to n of 8r³ plus summation r is equal to 1 to n of 12r² minus summation r is equal to 1 to n of 2r minus summation r is equal to 1 to n of 3. Constants outside summation. So this is equal to 8 summation of r³. R takes the values from 1 to n plus 12 summation of r², r is equal to 1 to n minus 2 summation of r is equal to 1 to n minus summation of r is equal to 1 to n of 3. अभी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गए, अभी रिजल्ट्स ऑफ समेशन यूज करना है, तो 8 remaining same, summation of r³ is what, n² into n plus 1 the whole square by 4, ये इसका रिजल्ट है, आप नोटबुक में देख लो आपके रेफरेंस के लिए, plus 12 remaining same, summation of r², so that is nothing but n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 minus 2, summation of r का फॉर्मूला है n into n plus 1 upon 2 minus, this is going to become 3n. देख लो. Now let us carry out the cancellations that are possible. So 4 2s are so twice, n² remaining same, n plus 1 the whole square को आप expand कर लो, या ऐसा भी कर सकते हैं, चलो थोड़ा डिफरेंट तरीका यूज करते हैं, यूजुअल वे से let us keep them as it is right now, n² और ये हो जाएगा n plus 1 the whole square को सेम रखो, this will go twice to n into n plus 1 into 2n plus 1, इधर ये 2 इसके साथ कट गया, माइनस n टाइम्स ऑफ n plus 1 माइनस 3n. नो डाउट अभी आप इनको एक्सपांड करके n² से मल्टीप्लाई करो, ओपन अप दीज ब्रैकेट, तो वो तो हमने किया भी है, हम थोड़ा डिफरेंट तरीका यूज करते हैं. वी कैन टेक n कॉमन, हर एक टर्म को देखो आप इसमें से n कॉमन निकाल सकते हैं, अब वो आपके ऊपर है, आपको इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है तो भी कर सकते हो, आपको इसमें से n कॉमन निकाल के करना है तो भी कर सकते हो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेट अस यूज इट अ डिफरेंट वे, तो हम क्या करते हैं, n कॉमन निकाल लेते हैं. So when I take n common from this, what will be left out? 2n into n plus 1 the whole square plus इधर से n गया तो 2 ब्रैकेट n plus 1 into 2n plus 1 माइनस इधर से भी n कॉमन है वो बाहर गया, यहाँ से n plus 1 माइनस इधर से n गया तो 3 बच गया. चलो नाउ एक्सपांड दिस एंड मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट्स और लिखो नेक्स्ट क्या मिलेगा. दिस इज फर्दर इक्वल टू n रिमेनिंग सेम, 2n रिमेनिंग सेम, n प्लस 1 द होल स्क्वायर, तो इसका एक्सपांशन मिलेगा n² प्लस 2n प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इसका एक्सपांशन मिलेगा 2n² प्लस n प्लस 2n इज नथिंग बट प्लस 3n प्लस 1. क्लोज द ब्रैकेट है, 2 के बाद ब्रैकेट ओपन किया है मैंने, माइनस साइन से ये ओपन हो जाएगा, -n -1 और ये -3 सेम, क्लोज द मेन वाला ब्रैकेट. अभी नेक्स्ट स्टेप में आगे वहां पे कंटिन्यू करूंगा ऊपर, क्योंकि ये नीचे से लिखने को नहीं जमता है तो थोड़ा वो इंक्लिनेशन वो टेढ़ा जाता है वो.
So now open up these brackets also. Therefore, Sn is further equal to n inside the square bracket. अब ये 2n मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा 2n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2n, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस n एंड -1 -3 हो जाएगा -4. Now simplify. So therefore Sn is further equal to n bracket. अब like terms can be added. तो 2n क्यूब वाला तो एक ही टर्म है, अभी n स्क्वायर वाले टर्म्स दो है. तो 4 + 4 is 8n स्क्वायर प्लस 2n + 6n is 8n. 8n minus n is 7n. और जो कांस्टेंट वाले टर्म है तो 2 - 4 is -2. This itself is the final answer and Sn. अभी टेक्स्ट बुक में हो सकता है कि उसने ऐसा आंसर दिया होगा या हो सकता है कि उसने n मल्टीप्लाई करके आंसर दिया होगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नोट डाउन, प्रॉब्लम इज ओवर. So with this we have finished off with this 8th question. Now जो exercise के remaining problems है that will continue in the next lecture with some extra problems also. But by that time please keep studying and keep watching my YouTube channel. Thank you very much.